अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम वाज देयर। So children, in the previous class we studied factors affecting bond enthalpy. Is the screen visible to you? Yes, sir. Yes. Okay. In the previous class we studied factors affecting bond enthalpy. Today we'll start from here only. So what is bond enthalpy? The amount of energy released when 1 mole of bond of particular type is formed. ठीक है? So bond enthalpy is the amount of energy released when 1 mole bond of particular type is formed. It can also be defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of particular type. When bond breaking is needed, then the bond enthalpy is known as bond dissociation enthalpy. So bond dissociation enthalpy can be defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond. बेसिक डिफरेंस क्या होगा बच्चों दोनों में, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में? बोथ विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट द साइन विल बी डिफरेंट. In case of bond enthalpy of formation, the sign will be negative because energy is released. ठीक है? In case of bond dissociation enthalpy, the sign will be positive because energy is given or energy is absorbed. But for a particular type of bond, the magnitude of both bond enthalpy and bond dissociation enthalpy will be same. ठीक है? So bond enthalpy or bond dissociation enthalpy depends upon following factors. First factor is size of atoms. So it is very obvious that greater the size of atoms, greater will be the bond length. ठीक है? And hence weaker will be the bond. So lesser will be the bond enthalpy. किसी भी एटम की साइज जितनी बड़ी होगी उनके न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस, दैट इज लेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, will be very large. When the bond length will be large, lesser amount of energy will be needed to break it. So with increase in the atomic size, bond dissociation enthalpy decreases. There is an inverse relationship between size of atom and bond enthalpy. So greater the size of atom, greater is the bond length and less is the bond dissociation enthalpy. That is, lesser is the bond strength during chemical bonding. Then the second important factor is multiplicity of bonds. Multiplicity of bond means number of covalent bonds present between two atoms. If single covalent bond is present, then multiplicity is 1. If two covalent bonds are present, then the multiplicity will be 2. That is in case of double covalent bond. Then in case of triple covalent bond, bond multiplicity will be 3. So greater the bond multiplicity, lesser will be the bond length and more will be the bond stability. That is, more will be bond dissociation enthalpy. So greater is the multiplicity of bond, greater is bond dissociation enthalpy or bond enthalpy. The magnitude of bond enthalpy is also related to bond multiplicity. Greater the bond multiplicity, more will be the bond enthalpy. For example, in case of carbon single bond carbon bond, the bond dissociation enthalpy is 347 kilojoule per mole. While in case of carbon double bond carbon bond, when the bond multiplicity is 2, bond dissociation enthalpy is 610 kilojoule per mole. Now you can compare which one is greater, 347 or 610. Obviously it is 610 which is greater. That means greater the bond multiplicity, greater is bond dissociation enthalpy. Then the third important factor on which bond enthalpy or bond dissociation enthalpy depends is number of lone pair of electrons present. ठीक है? So greater the number of lone pair of electrons, more will be the repulsive forces experienced by bonded pair of electrons. And when repulsive forces will be more, then the bond will be weaker. ठीक है? जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, अटैचमेंट उतना ही वीक होगा. ठीक है?
तो रिपल्शन कब ज्यादा होगा? जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज्यादा है. So greater the number of non-bonding electrons or greater the number of lone pairs, more will be the repulsive forces experienced by bonded pair of electrons, and hence lesser will be bond dissociation enthalpy because the bond will be weaker. So what is written here? More the number of lone pair of electrons present on bonded atoms, greater is the repulsion between atoms, and thus less is the bond dissociation enthalpy. ठीक है. In case of polyatomic molecules, let us see. Here you can see an example of methane molecule, CH4. And you can see there is a fire between one CH bond. This fire or this heat is used for breaking this bond. That means bond dissociation enthalpy is supplied. So in order to break one CH bond, we can see the value of bond dissociation enthalpy is plus 435 kilojoule per mole. If 1 mole of one CH bond are broken, then the energy required would be 435 kilojoule per mole. अब सेकंड, इसको टूटने के बाद कितने बचे? 3 CH bonds. उसमें से अगर एक और बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल फर्दर गेट इंक्रीज्ड. व्हाई इट विल गेट इंक्रीज्ड? Because the nuclear charge which will be present in carbon will be more effective. It will be capable of holding the bonded pair of electrons more effectively. That means effective nuclear charge on bonded pair of electrons would get increased. As a result, the bond dissociation enthalpy gets further increased and it becomes delta H equals plus 444 kilojoule per mole. तो मीथेन मॉलिक्यूल में पहले CH बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितनी चाहिए? 435 किलो जूल पर मोल. फिर एक और बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 444 किलो जूल पर मोल. ठीक. अब CH3 से एक और बॉन्ड तोड़ना है. अगर आपको थर्ड बॉन्ड तोड़ना है, मतलब क्या मॉलिक्यूल बचा था आपके पास? CH2. CH2 में से एक और बॉन्ड तोड़ना है. एक और बॉन्ड तोड़ोगे. इन दिस केस द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग गेट डिक्रीज्ड. ठीक है. पहले वाली जो वैल्यू थी वो थी, दूसरी वाली बढ़ गई. अब तीसरी और चौथी वाली जो वैल्यूज है वो फर्दर कम हो जाएंगी. क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ? बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला आएगा, एक हाइड्रोजन पे चला जाएगा. तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. जब दूसरा बॉन्ड आपने तोड़ा तो एक और इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया, एक हाइड्रोजन पे चला गया. इस तरीके से कार्बन पे क्या गया? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दिस विल रिपल दिस रिमेनिंग CH बॉन्ड्स, जिसकी वजह से रिमेनिंग CH बॉन्ड्स जो है वो वीकर हो जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये बॉन्ड जब वीक हो जाएंगे तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी. सो थर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लेसर देन सेकंड वन एंड इट इज 440 किलोजूल पर मोल. फिर फोर्थ वाला, लास्ट वाला जो बचा, उसको भी अगर आप तोड़ते हो तो further decreases and it becomes 343 due to increase in number of lone pair of electrons. So here we studied how this bond dissociation enthalpy depends upon size of atom, how it depends upon bond length, and how it depends upon the number of bonds between two atoms, and how it depends upon the number of lone pair of electrons present. अब अगर आपसे बोला जाए what is bond dissociation enthalpy of CH4 molecule, फिर क्या करेंगे? इन चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है. एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज 4. तो 1662 अपॉन 4 गिव्स वैल्यू 415.5 किलोजूल. तो 415.5 किलोजूल पर मोल इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH4 मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया बेटा फैक्टर्स? सर ये सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी? आपको कोई सी वैल्यू याद नहीं करनी है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे कैसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि जो थर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सेकंड से कम होगी, क्यों होगी? तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. वैल्यूज कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको. रुमिसा, गॉट इट? यस सर. कोई भी वैल्यू बेटा याद करने की जरूरत नहीं है. आप याद करना नहीं. आप इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की जो रीजनिंग है, दैट रीजनिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओनली द रीजनिंग पार्ट वुड बी आस्क्ड.
No numerical values will be asked. It can never be asked in any exam. All right. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज दी गई है कि इसकी हेल्प से आपको समझाया जा सके. फाइन. Okay. Yes, sir. Then another bond parameter is bond order. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया. बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल. तो H2 में बॉन्डिंग कैसी होती है? H सिंगल बॉन्ड H. There is single bond, therefore the bond order of H2 will be 1. Bond order of O2 would be 2. Why? Because there is double covalent bonding between two oxygen atoms. Bond order of nitrogen molecule is 3 because of presence of triple covalent bond. अच्छा, यहाँ पे टाइप करते नहीं बनता ना, क्योंकि आप डबल बॉन्ड को इक्वल साइन से टाइप कर सकते हो, 3 लाइन आती नहीं है, इसलिए इसको आप अपने से जब आप इसका प्रिंट आउट लें तो वहां पे आप करेक्ट कर लेना. ठीक है. So here there should be N triple bond N and the bond order would be equal to 3. एक और लाइन वहां पे आ नहीं रही थी, इसलिए टाइप नहीं किया मैंने. आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. दो नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3. When you take the print out of these notes, at that time you may make it correct by using pencil or pen. एक और लाइन खींच लेना, मैं बता रहा हूं. ठीक है, इसको याद रखना दिमाग में. Then in isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. What are isoelectronic molecules or ions? Those species, those molecules or those ions which have same number of electrons are called isoelectronic species. All isoelectronic species have identical bond orders, means they have bond orders same. For example, in case of F2 molecule, there is single covalent bonding between F and F, so bond order is 1. In case of O2 dinegative, O2 dinegative is peroxide ion. ठीक है, peroxide ion का फॉर्मूला क्या होता है? O2 dinegative. There are two oxygen atoms which are single covalently bonded and both oxygen atoms carry 1 unit negative charge. ठीक है, दोनों ऑक्सीजन में सिंगल कोवेलेंट, O2 dinegative, single covalent bond. Now you can see, you can calculate the number of electrons. How many electrons would be there in fluorine atom, fluorine molecule? Atomic number of fluorine is 9. 9 to the 18. ठीक है, total 18 electrons are there in F2 molecules. How many electrons are present in peroxide ion? One oxygen atom has 8 electrons. Another has 8 electrons. 8 plus 8, 16. 16 plus 2, which is equal to number of negative charges. So 16 plus 2, 18. Both these species, F2 ion and F2 molecule and O2 dinegative ion has 18 electrons. So they are isoelectronic molecules and ions, and they have bond order 1. Means all isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. Similarly, another example, N2 molecule, carbon monoxide molecule and nitrosonium ion. NO positive is known as nitrosonium ion. ठीक है. In N2 there is triple covalent bond between two nitrogen atoms. In carbon monoxide there is triple covalent bond between carbon and oxygen. In nitrosonium ion there is triple covalent bond between nitrogen and oxygen. So these have identical bond order 3 and all have same number of electrons also. जैसे नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 7 plus 7, 14 electrons. इधर 8 प्लस, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हो जाएंगे? कार्बन में 6 और ऑक्सीजन के 8. 8 plus 6, 14. नाइट्रोजन में भी 14. नाइट्रोसोनियम आयन में कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8. 8 plus 7, 15. और एक प्लस चार्ज है इसलिए -1 कर देंगे. 15 minus 1 equals 14. So all these three species have same number of electrons. So they are isoelectronic molecules and ions, and they have same bond order. Is it clear? So all isoelectronic species have same bond order. Now, with the increase in bond order, bond multiplicity increases.
And when bond order increases or bond multiplicity increases, bond enthalpy increases and bond length decreases. ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होगा, तो atoms will be held more firmly, they will come more close to each other. As a result, bond length will get decreased. And when bond length will get decreased, bond stability will get increased. Bond length decrease होगी तो bond stability बढ़ेगी, increase होगी. Bond stability increase होगी तो bond enthalpy भी increase होगी. We can understand this concept by taking these examples. First example is the case of ethane molecule. CH3 means C2H6. There is single covalent bond. Bond order is 1. So bond length is large, 1.54 angstrom. In case of second molecule, which is ethene molecule, C2H4, alkene. Bond length is less because there is more bond order. Bond order is 2, so bond length reduces. It becomes 1.33 angstrom. When it is ethyne molecule, bond multiplicity or bond order gets further increased. As a result, bond length further gets decreased and it becomes 1.20 angstrom. So, with increase in bond order, bond length decreases and bond enthalpy increases. ठीक है, for N2 molecule bond order 3, bond enthalpy 946 kilojoule per mole. For O2 molecule bond order is 2, so bond enthalpy is 496. देखिए जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ 3 से 2 हुआ, बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज हो गई. ठीक है, दैट मींस बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर आल्सो. ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, greater would be the bond enthalpy and lesser would be the bond length. Understood? आया समझ में बच्चों? Yes, sir. Okay, then we are proceeding to a very new concept, that is resonance and resonating structures. See, there are many molecules whose all properties cannot be explained by considering its only one structure, only one Lewis structure. ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों जिनमें एक स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. Therefore, more than one Lewis structures are proposed for such molecules, and all these Lewis structures for a particular molecule are known as resonance structures, and the phenomenon is known as resonance. ठीक है, so there are many molecules whose behavior cannot be explained by single Lewis structure. For example, the Lewis structure of ozone, O3 molecule are represented as follows. ये देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिखे हैं आपको. एक स्ट्रक्चर में राइट साइड में डबल बॉन्ड है और दूसरे स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है. एक्चुअली बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर रोटेटिंग. ये रोटेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर मार्क दे दिया. ये वाटर मार्क क्या रोटेट हो रहा है. ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ओजोन मॉलिक्यूल. पहला ये वाला फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन. These resonating structures of a molecule are also known as canonical structures. ये नीचे लिखा है स्पेलिंग CANONICAL. So canonical structure means resonating structures of molecule. But none of these structures explain all the properties of ozone molecule. Let's see how. यहाँ पे क्या है, ओजोन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. इधर क्या राइट साइड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है. तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ शुड बी लेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ. ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये पता किया गया कि ओजोन में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं होता जिसकी वैल्यू ज्यादा हो या कम हो. बोथ द बॉन्ड्स हैव सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, इसका मतलब इसमें दोनों जो ऑक्सीजन बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है. ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया. लेकिन लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए. इट मींस none of these bonds in ozone molecule are single or double, rather
दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड इन कैरेक्टर। ये दोनों बॉन्ड, एक जो सिंगल बॉन्ड है एक्चुअली सिंगल नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे शो करते हैं? एक बोल्ड लाइन और उसके ऊपर डॉट 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 की एक लाइन। सिमिलरली जो डबल बॉन्ड है वो एक फुल डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है और ऊपर डॉट 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 मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इस जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बोथ बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। हियर आर द वैल्यूज गिवन। In first case, in case of oxygen single covalent bond length as determined by spectroscopic method is 148 picometer. ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 148। जबकि ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितनी होती है? 121 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड की कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता किया गया, ओजोन की दोनों बॉन्ड लेंथ को मेजर किया गया, ये पाया गया कि इसकी दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो 128 पिकोमीटर की है। इनमें से कोई भी 148 की नहीं है, कोई भी 121 की नहीं है। इट मीन्स द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज ऑफ दीज बॉन्ड्स। जैसे 148 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव द वैल्यू 128। ठीक है, तो 148 प्लस 121 कितना हो जाएगा? 269. 269। और 269 डिवाइडेड 269 और 250, हाँ 269 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 128 के पास आ जाए, मतलब उसके बीच में आएगी। जो एवरेज वैल्यू आएगी, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ और डबल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ के बीच की आएगी। 128 इज ग्रेटर देन 121 एंड लेस देन 148। ठीक, सो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स in which single Lewis structure cannot explain all its properties. Therefore, more than one Lewis structures are proposed for such molecules. And these Lewis structures are known as canonical structures or resonating structures. And the phenomenon is known as resonance. Thus, according to concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot explain all the properties of molecule, the molecule is then supposed to have many structures with similar energy. The position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures. And the real structure of the molecule is actually the hybrid of both the structures. This hybrid is called as resonance hybrid. तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या होंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? जो दोनों का हाइब्रिड है, ये वाला जिसमें 128 पिकोमीटर। तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन विल बी दिस वन हैविंग बोथ द बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर, एंड दिस रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। Out of all the canonical structures, that structure is most stable, which have lesser value of bond dissociation enthalpy. ठीक है, which have least value of bond dissociation enthalpy. और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। Let's try to understand some resonating structures of some other molecules like carbon dioxide. ये दिया जैसे CO2, तो कार्बन is, since it is least electronegative, it is placed in center, and both oxygen atoms are present at opposite diagonals in order to minimize the repulsive forces. ये 90 डिग्री पे या किसी और डिग्री पे नहीं हो सकते, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम। और ये मिनिमम रिपल्शन कब होगा? व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं। राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर्स बचे? 2 लॉन पेयर्स ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया कार्बन का एक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर हम मानेंगे, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो दोनों बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ लेस देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है। इसका मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया कि एक साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक साइड, अभी काउंट कीजिए,
तो इधर ये देखिए जो ये सिंगल बॉन्ड है, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय कार्बन एटम। कैसे पता? बिकॉज ऑक्सीजन हैव ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है। इसका मतलब इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के। तो आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड। कितने बचे? 2। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ पे हैं और 4 किसके हैं? ऑक्सीजन के। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? ऑक्सीजन के। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए अब ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने यूज हो गए? 4। रिमेनिंग कितने बचे? 2। दिस 2 आर सोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा यूज हुआ है बॉन्डिंग में, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस साइड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ है, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए? एक कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। मतलब दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट। इसका रिफ्लेक्शन कर दीजिए, मिरर इमेज बना दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड को इस साइड ले आइए, सिंगल बॉन्ड को इस साइड ले जाइए, ये बन गया। जो एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इन तीनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा। ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होगी तीनों की हाइब्रिड होगी। इसका मतलब इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा, ना कोई सिंगल बॉन्ड होगा, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ एक्चुअल कैसी होगी? 2.5। मतलब 2 डबल बॉन्ड होंगे और उसके ऊपर एक डॉटेड 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 वाला पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, आप इसको प्रिंट आउट में काट देना। यहाँ पे एक ही लॉन पेयर रहेगा कार्बन के ऊपर। इस पिक्चर में गलत है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पिक्चर को मैं एडिट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रहने दिया, इसको आप कर देना। तो यहाँ पे कार्बन पे एक ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बीच में क्या बॉन्डिंग है? डबल कोवलेंट बॉन्डिंग है। जो एक्चुअली यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्डिंग अगर आप करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 4 बचे उसके पास, कार्बन के पास कितने बचेंगे? सिर्फ 2 ही तो बचेंगे। टोटल 4 होते हैं, इसमें 2 बॉन्डिंग में यूज हो गए, 2 बचेंगे, एक एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, मींस इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज देयर इज चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है? 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। इसका मतलब इस बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के। तो कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। Then the third resonating structure of carbon monoxide, there is a triple covalent bond between carbon and oxygen, out of which 2 electrons of carbon has taken place in bonding and 4 electrons of oxygen. As a result, carbon is left with 1 lone pair of electron only and oxygen is also left with 1 lone pair of electron. Since more number of electrons are contributed by oxygen, oxygen acquires positive charge and carbon acquires negative charge. So, children, in this way we can write resonating structures of different molecules, out of which are more important for examination point of view: carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous acid, नाइट्रिक एसिड। बाकी तो ऐसे हर एक मॉलिक्यूल्स के हैं, आपको ज्यादा फोकस के साथ किसको पढ़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। So let's see the nitrous acid. Nitrous acid किस टाइप का एसिड? व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ नाइट्रस एसिड? 10th में आपने पढ़ा था ना बेसिसिटी ऑफ एसिड, अभी 11th में ही पढ़ा है। इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी, basicity of acid means number of replaceable H plus ion. How can we find the number of replaceable H plus ion? By finding how many OH bonds are there. ठीक है, तो इधर देखिए जो OH बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है क्योंकि ये बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड है और हाईली पोलर बॉन्ड से ही H प्लस आयन बाहर निकलता है, इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। सो हाईली पोलर होने की वजह से इसमें से एक H प्लस निकल सकता है, मींस नाइट्रस एसिड इज मोनो बेसिक एसिड। फाइन।
अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वन हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम in which one electron is contributed by both. Then there is again single covalent bonding between nitrogen and oxygen atom. ठीक है, in which one electron is contributed by both oxygen and nitrogen. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इधर हो गया. Two lone pairs are left. Out of this nitrogen has how many valence electrons? 5. 5 में से एक इधर यूज हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग में. कितने बचे? 4. ठीक है, 4 के 4 यहाँ पे डॉट्स के रूप में प्रेजेंट है. इसका मतलब आगे जो नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का नहीं है. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के. देन अनदर स्ट्रक्चर इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O. यहाँ पे देखिए O के एक भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गई. तो नाइट्रोजन के ये दो है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो गई. नाइट्रोजन के दो प्रेजेंट है उसके पास, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक बचा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस. तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? उसका क्या होगा? इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है नाइट्रोजन का, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के. तो 3 + 2 ये कितने हो गए? 5, और एक यहाँ पे यूज हुआ है ऑक्सीजन का 6. So in this double bond formation, 3 electrons of oxygen and 1 electron of nitrogen is used. ऑक्सीजन ने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. और इधर ऑक्सीजन ने एक भी नहीं किए, इसलिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है. तो नाइट्रस एसिड हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. नाइट्रिक एसिड. सर एक डाउट है. हाँ बेटा. सर इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन ने एक भी नहीं दिया, तो डबल बॉन्ड कैसे हुआ? हाँ, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना? यस सर. यस सर. ये जो ऑक्सीजन है, अभी नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, एक पेयर बचा है. अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, मीन्स इसे परफेक्ट डबल कोवेलेंट बॉन्ड. और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस है, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, इरेज कर देना. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, ये मिस्टेक है पिक्चर में. ठीक है, लिख लो आप कहीं पे कॉपी में. प्रिंट आउट लेना तो उसको डिलीट कर लेना वहां से. एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पिक्चर में है. पिक्चर में एडिटिंग नहीं हो सकती ना, इसलिए मैंने किया नहीं है, अदरवाइज तो मैं कर देता अभी तक. ऑल राइट, नाइट्रिक एसिड HNO3. ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड, मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 OH बॉन्ड. ठीक है, एक OH बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, और दूसरा क्या हुआ? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर पे, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, OH बॉन्ड बन गया. ठीक है, अब ऑक्सीजन ने फिर क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिया. ठीक, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. ऑक्सीजन के 2 यूज हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर नॉट शोन. ठीक है, दिखाया नहीं है लेकिन है. देयर आर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम. नाइट्रोजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इधर जब बॉन्डिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ यूज हो गया, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने बचे? 4. ऊपर वाले बॉन्डिंग में देखिए कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, 2 ऑक्सीजन के पास है, और डबल बॉन्डिंग भी है. ठीक है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहाँ पे यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूज हो गए, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई. ठीक, ऑक्सीजन का पूरा हो गया. नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इधर यूज हुए, एक इधर यूज हुआ, 2 और बचे. यहाँ पे जो बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय नाइट्रोजन. ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, और इट विल हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस ऑक्सीजन विल हैव 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 2 ही दिखाए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स वुड बी देयर.
ये देखिए इसका जो दूसरा वाला पार्ट ये कट गया पिक्चर में, ऊपर जो नेक्स्ट वाला उसमें दिखाया है 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ भी 3 ही रहेंगे क्योंकि जस्ट रिफ्लेक्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऊपर था, इसमें डबल बॉन्ड नीचे हो गया, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अंडरस्टूड? यस सर। समझ आगे समझ में? जहां जहां मिस्टेक है उसको आप लिख लो, बाद में जब प्रिंट आउट लेना उसको करेक्ट कर लेना आप। नेक्स्ट, नाइट्रेट आयन, जैसे HNO3 था, HNO3 से नाइट्रेट आयन कैसे बनाएंगे? ये वाला बॉन्ड OH बॉन्ड जो यहाँ से तोड़ दीजिए तो ये नाइट्रेट आयन बन गया। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, OH बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब H+ निकालना है। H+ निकालोगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और ऑक्सीजन को नेट प्रॉफिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट विल गिव नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर पता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो नाइट्रेट आयन का बड़े आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ OH बॉन्ड को तोड़ देना है। OH बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। जब ऑक्सीजन पे दोनों क्यों चले जाएंगे दोनों? क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल टेक बोथ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से ऑक्सीजन को नेट प्रॉफिट हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। यही स्ट्रक्चर है। देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग, दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और तीसरे ऑक्सीजन के साथ क्या था? सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए ऑक्सीजन के दोनों एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वो कहां दिखा दिया हमने? टोटल ऊपर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट करना है। पहले ऊपर था, दूसरे में लेफ्ट साइड में ले आए, तीसरे में राइट साइड में ले गए। So these are 3 resonating structures of nitrate ion. Similarly, we can write resonating structures of sulfur dioxide. Sulfur has 6 valence electrons. Oxygen also has 6 valence electrons. अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 के 6 इसके पास है। अब बॉन्डिंग भी है, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा? दिस वुड बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ सल्फर ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, 2 ऊपर ऑलरेडी लॉन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्डिंग में यूज हो गए। डबल बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने बचे? 4 ऑक्सीजन के पास। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, घुमा देंगे इसको, ये डबल बॉन्ड जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक, similarly we can write resonating structures of sulfur trioxide, SOO। ऊपर देखिए क्या है? डबल बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 2 ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के 4 उसके पास है। नीचे वाले में देखिए, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग में ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, दोनों जगह एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सल्फर के। तो सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? +2 +2 +2 मतलब 6। यहाँ ऊपर वाला जो डबल बॉन्डिंग है सिर्फ उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, बाकी के साथ यूज नहीं हुआ है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करेंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन आप शिफ्ट कर दीजिए, पहले ऊपर है, दूसरे में लेफ्ट में कर दिया, तीसरे में राइट में कर दिया। ठीक है, इन दिस वे वी कैन राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ different molecules. बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? C6H6 which are in the form of hexagonal ring, और इस hexagonal ring में each carbon atom is bonded to 1 hydrogen atom by single covalent bond. ठीक है, हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में राइट साइड में चली गई। आपको सिर्फ पोजीशन चेंज कर देना है डबल बॉन्ड का, बस। अब ऐसा करने से इसका मतलब क्या है कि इसमें बेंजीन में तीन कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, और 3 कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए। लेकिन रियल स्ट्रक्चर में कोई भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ नहीं होती। ऑल 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इक्वल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन because they have partial double bond character। इसलिए कई जगह बुक्स में कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये हेक्सागोनल रिंग बना दिया, बीच में एक सर्कल बना देते हैं। वो सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है
there is no fixed position of double bonds. Double bonds positions are rotating inside because of resonance. Greater the number of resonating structures of a molecule, more is the energy released and more is the stability of the molecule. किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा पॉसिबल है बनाने में, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती है. हियर वी हैव सल्फेट आयन, SO4 डाइनेगेटिव आयन. सल्फेट आयन में क्या होता है? सल्फर और 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और 2 के साथ कैसा है देख लीजिए, 2 2 4, 1 5 1 6, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन. मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया सल्फर ने, दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, और रिमेनिंग 2 के साथ क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो सल्फेट आयन में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और 2 2 4, हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है. 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो एक्स्ट्रा गेन किए वो बॉन्डिंग में यूज हो गए. एक्स्ट्रा कहां से गेन किए? नेगेटिव चार्ज की वजह से. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक गेन फ्रॉम आउटसाइड, देन वन मोर अनदर बॉन्ड, वन मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर एंड वन गेन फ्रॉम आउटसाइड. इसलिए ऑक्सीजन के पास 8 के 8 ही रहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले में, जबकि डबल कोवलेंट वाले 2 लोन पेयर्स ऑफ रहेंगे. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, लुईस स्ट्रक्चर. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट कर दीजिए बस. ठीक है, ऊपर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लाए, इन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज किया, फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज किया, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दी. 2 or more resonating structures are always separated by a double headed arrow. जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपको बनाना है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? डबल हेडेड एरो होना चाहिए. ठीक है, all right children, so understood this concept of resonance? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so I'm coming back to the meet now.